Political violence. Oh my God. पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि किस तरह नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स ने अपने गोल्स अचीव किए. हमने डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग की जो ग्रेट स्ट्रगल थी इन सेल्मा, उस पर एक फिल्म भी देखी और फिर उसके बाद थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई. आज हम बिल्कुल उसके ऑपोजिट एक चीज़ देख रहे हैं कि व्हेन पॉलिटिकल मूवमेंट्स यूज़ वायलेंस. अब वायलेंस का लफ्ज़ ही जो है उसका मतलब है तशद्दुद, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि तशद्दुद क्यों बुरा होता है. ऑल्दो बहुत सारी तकरीबन तमाम सिविलाइजेशंस में वॉरियर कल्ट्स मौजूद हैं. द पर्सन हु गोज़ एंड फाइट्स एंड so on so forth and as a great warrior, a great soldier or what not. मगर इवन जहाँ पे ये वॉरियर कल्ट्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं तो पॉलिटिकली उनकी ख्वाहिश यही होती है कि उनके अपने समाज के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर, अपनी ट्राइब के अंदर अमन होना चाहिए. Why? Because everybody understands that violence means death and destruction, and it's not a nice thing. You can see this is a picture of Gaza here. तो हॉब्स लॉक को भी आप पढ़ सकते हैं कि वो भी बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए करना चाह रहे थे कि उसमें ओवरऑल लेवल ऑफ वायलेंस सोसाइटी में कम हो जाए. बट यू डोंट नीड हॉब्स लॉक टू अंडरस्टैंड दैट. आई थिंक दैट्स वेरी ऑब्वियस कि इंसान जो है वो ये नहीं चाहता कि उसकी अपनी ज़िंदगी में वायलेंस हो. एंड आई थिंक ऑल कल्चर्स जनरली स्पीकिंग डोंट वांट to lead a life themselves that is filled with violence, although all cultures also think that it's okay to sometimes do violence in this circumstance. So that there's no purely non-violent culture, perhaps a few movements here and there, but as civilizations we have seen that people have gone to war over history. But nonetheless, you don't want to go to war within your own society and tribe and state and country and so on. So here we introduce the first major distinction between force and violence, although they sound pretty much the same. मगर आप गौर करें कि जब भी फोर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है मतलब तो वही है कि डंडा को चला रहा है, मगर फोर्स इज़ यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट वेयर वी फील दैट द वायलेंस इज़ लेजिटिमेट. सो वी डोंट से वायलेंस, वी डोंट से स्टेट वायलेंस, वी से स्टेट यूज्ड फोर्स. ठीक है, सिक्योरिटी फोर्स एंड सो ऑन. So that means violence is the use of force without any moral justification. We use the term violence when we particularly mean that this is without justification. हो सकता है आपके कोई सियासी अज़ाइम है, you want to do something, you want to achieve something, politically speaking, but what the way in which you're using force, the kind of force you're using, the people against whom you're using the force is unjustified, illegitimate, then we'll call it political violence. Generally, the term political violence is not used for the state. However, as is the case in most things with respect to political theory, इस पे बड़ी debate है कि जब पुलिस जो है वो मार कुटाई करती है, डांग सोटा लेके आती है, तो generally not always but generally हम ये कहते हैं कि that they are using force का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं. और जब नॉन स्टेट एक्टर्स इसको यूज़ करते हैं फोर्स, तो उसको हम कहते हैं वो वायलेंस कर रहे हैं. सो दैट इज़ द डिस्टिंक्शन वी यूज़. मगर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये डिस्टिंक्शन एक सेंस में आर्बिट्ररी डिस्टिंक्शन है, because it's just looking at whether the state is doing it versus if a non-state actor is doing it. But it's not really looking at why the state is doing it, why that non-state actor is doing it, etc. It's not really actually addressing the question politically speaking, because it's not really trying to understand why that state is acting. Maybe the state is acting because it wants to prevent a riot. Maybe it's acting because it wants to make sure कि कोई चोरी वगैरह ना हो, कोई प्रॉब्लम इस तरह की चीज़ ना हो. Understandable. But maybe the state is acting because it wants to preserve racist laws. Or maybe the state is acting because it wants to preserve sexist laws or other kinds of laws that discriminate against people. In that case, is that use of force justified? Would we then say this is state violence? These are the big, hotly debated questions. So we can also see that there are many different kinds of violence. एक तो direct violence है. Direct violence I don't need to explain to you. Direct violence is कि obviously directly कोई किसी दूसरे पे तशद्दुद कर रहा है. It doesn't need much of an explanation. But indirect violence can also be by omission. By omission means कि if I can do something to prevent violence happening to someone and I don't do it, so that is a deliberate decision on my part, a deliberate omission on my part to not do that. Because I want that act, let's say, to proceed as it's proceeding. And that can also be the case.
So for example, we could say that there is a great omission today in the world with respect to what's going on in Palestine. And the people who are failing to say, this is completely absurd, are by omission complicit in those acts. Then we have repressive violence. Repressive violence is mainly for a particular political goal, which we would consider to be repressing the population in some way, in a bad way. So for example, कि working class लोगों को वोट देने का हक नहीं देना, उनको repress किया जाए, या औरतों को वोट देने का हक नहीं देना, तो उनको repress किया जाए, या African Americans को नहीं देना हक, या South African black लोगों को नहीं देना हक, या फिर इंडियंस को नहीं हक देना, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल है यहाँ पे, वो कहते हैं जी इंडियंस को हम क्यों सेल्फ गवर्नेंस दें, उनको रिप्रेस किया जाए, एक्सेट्रा. So that would be repressive violence. And finally you would have alienating violence, which would be a kind of violence in which you sustain things like racism and oppression, etc. It's not necessarily that you're acting in that repressive way in the sense that actively repressing somebody, but you've built a system in which there is systematic racism, there is systematic discrimination, and you don't have to impose that discrimination on an everyday basis with the danda, but you can impose it also with other things, like not necessarily with physical violence, but you can also impose it with other kinds of means, the law and courts and judiciary and so on. What about when somebody is fighting against dictatorship? Do you recognize who this guy is, this boxer? Who is this man? Mandela. Yes, that is correct. This is Nelson Mandela. And as you can see, he used to be a tough guy. And that's also, of course, also Nelson Mandela. And he was a boxer. And Mandela ने फैसला किया, ANC ने, he was one of the leaders of the ANC, उसने फैसला किया कि ये जो white government है, जिसने इतने apartheid laws बनाए हुए हैं, discriminatory laws blacks के खिलाफ, ये ऐसे नहीं मानेंगे non-violent, गांधी, Dr. Martin Luther King वाला मामला नहीं चलेगा. And he created an organization called the Spear of the Nation, and because he was a fighter in his own day, he was heading the armed wing of the African National Congress. Okay, he was the man who was doing the guerrilla war and fighting, etc. And at that time, of course, Thatcher, UK की government ने कहा कि ANC is a terrorist organization, USA ने भी कहा ANC is a notorious terrorist group, etc. सब उसके खिलाफ थे, Mandela के खिलाफ थे, etc. मगर the reality was कि apartheid left no channel open to the black majority कि इस तरह से उनकी grievances redress हो सके. There was no channel open. And of course, ANC had been trying for a very long time कि भाई ये laws change करें आप. Communist Party of South Africa, उसके बाद ANC, Communist Party of South Africa ban हो गई, वो ANC के अंदर घुस गई, etc. तो ये लड़ी जा रहे थे कि भाई change these horrible racist laws, मगर laws change नहीं हो रहे थे. So क्योंकि वो change नहीं हो रहे थे, by the 60s they decided, 20 से चल रही थी struggle, by the 60s they decided कि इस तरह नहीं बात बनेगी, हमें कोई political violence करनी पड़ेगी, और उन्होंने की, उसके ऊपर repression भी हुई. Palestine, of course, is another example of a state which discriminates against the Palestinian people in a really horrific sort of way. And of course, Palestinians भी कोशिश करते रहे हैं for a very, very long time, since the 30s in fact, कि भाई हमें जो हकूक़ मिलने चाहिए वो अपनी जगह मिलने चाहिए. 48 के बाद, नकबा वगैरह के बाद उनकी अपनी स्ट्रगल्स थी. It's not till the 1970s कि जब PLO बनती है, और फिर जाके Al-Fatah बनती है, and 67 etc. and then the Battle of Karame they fight, etc. and then Arafat becomes the head of the PLO, etc. That's when the Palestinians finally begin to fight. So late 1960s, 1970s is when the Palestinians pick up arms. उससे पहले non-violent तरीके से they've been trying to कि हमारी grievances address हो for a very long time. So what then is a just war? Here is a woman who is part of the Vietnamese guerrillas who fought against the United States of America. जब क्योंकि इनकी country जो है, जिस तरह हमारी country में ब्रिटेन का colonial rule था, तो इनकी country के अंदर फ्रांस का colonial rule था. तो ये पहले फ्रेंच के खिलाफ लड़े और इन्होंने फ्रेंच को डिफीट कर दिया 1954 में एट द बैटल ऑफ Dien Bien Phu. बीच में जापानीज़ भी बढ़ गए कि हम टेक ओवर कर लेते हैं, फिर वो वहाँ से निकले तो फ्रेंच वापस आ गए. तो इट वाज क्वाइट अ बिट ऑफ अ मेस, बट दे फॉट फर्स्ट द फ्रेंच, देन दे फॉट द जापानीज़, देन दे फॉट द फ्रेंच अगेन. एंड व्हेन दे डिफीटेड द फ्रेंच, द अमेरिकन्स वर वेरी वेरी अपसेट. उन्होंने कहा कि ये तो कम्युनिस्ट जो इक़्तिदार में आ जाएंगे. तो फिर अमेरिकन्स ने जो है उसके बाद इंटरवीन करना शुरू किया. सो देन द वियतनामीज ऑल्सो फॉट द
Americans. Certainly a lot of people would say that Vietnam fighting for its independence was a just war. Many women, children, etc. were involved in this. आपने कभी वो film देखी Platoon? Platoon is a fantastic film. Do watch it sometime. बहुत सारी anti-war movies आपको पता है वियतनाम पे बनी. Forrest Gump, okay, चलो वो भी ठीक है. बहुत सारी बनी है. Platoon is like one of the most amazing ones that you can watch. Apocalypse Now is another amazing one. अगर आपको टॉम क्रूज पसंद है तो Born on the 4th of July is a pretty good movie as well. तो प्लेटून इसलिए अमेजिंग है कि एक पूरा दस्ता अमेरिकन फ़ौज का ना जो है वो एक जगह जाके फंस जाता है जहाँ पे एक कोई बंदा जो है ना घुसा हुआ है ऊपर बिल्डिंग के अंदर स्नाइपर, और वो स्नाइप करी जा रहा है. फ़ौज जो है ना वहाँ से आगे नहीं, दस्ता छोटा सा दस्ता जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि सच अ गुड स्नाइपर देयर. And they're trying to take the sniper down, they can't manage, and finally they say अच्छा जाके कोई RPG वगैरह लेके आओ, फिर वो रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड मारते हैं वहाँ पे, तो फाइनली जाके स्नाइपर मरता है. तो फिर वो ऊपर जाके चढ़ के देखने की कोशिश देखना चाहते हैं कि कौन था बंदा जिसने पूरा हमारा प्लेटून रोकी हुई थी यहाँ पे. They discover that it's a 14-year-old girl. This is a true story. So it shows you the dedication with which these people, fought to liberate their country. So certainly Vietnam can be considered a just war because they're trying to liberate their country. So what would be a just war then? A just war would be one जहाँ पे अगर कोई massive, destruction of human rights वगैरह हो रही हैं, so to fight against that would be a just war. ठीक है? लोगों की साथ इंतहा की जुल्म व ज़्यादती हो रही है, उसके खिलाफ जद्दोजहद करना एक just war है. ठीक है? It can't be obviously based on narrow self-interest and self-aggrandizement या इस मकसद के लिए कि आपको बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, ज़मीनें मिल जाएंगी, दूसरे लोगों को आप गुलाम बना लेंगे. Obviously that cannot be a just war. It has to have a reasonable chance of success, ठीक है? But at the same time the force cannot be directed against non-combatants. You have to fight combatants. आम लोगों को तो नहीं मार सकते आप. और it has to be proportionate. ठीक है, इन द सेंस के अगर आपका दुश्मन भी है, उसने आपके साथ ज़्यादती भी की है, तो आप ये नहीं कर सकते कि बस आप दुश्मन को अनाइलेट ही कर दो. आप इतना लड़ें कि जिससे उसकी ज़्यादती ख़त्म हो जाए, मगर उससे आगे नहीं आप लड़ सकते. बिकॉज देन अदरवाइज यू कन्वर्ट व्हाट वाज इनिशियली अ जस्ट वॉर इनटू एन अनजस्ट. ओके, आगे चलते हैं. Political violence can sometimes also be very counterproductive. It can sometimes people think कि अगर हम कोई violent act करेंगे तो उसकी वजह से रिप्रेशन होगी और रिप्रेशन के खिलाफ लोग एकदम से इकट्ठे हो जाएंगे. ठीक है? सो दे डू इट डिलिबरेटली, प्रोवोकेटिवली, जानबूझ के प्रोवोक करने के लिए स्टेट को भी कभी कभार लोग जो है वायलेंट एक्ट करते हैं कि स्टेट का इतना ओवरवेलमिंगली बुरा रिस्पॉन्स होगा कि उस रिस्पॉन्स के खिलाफ लोग इकट्ठे हो जाएंगे. तो ये भी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है, मगर अक्सर ये बैकफायर कर जाती है. एक ये ग्रुप था बड़ा फेमस, अगर आप ये फिल्म देखें यू रियली लाइक इट. इट्स कॉल्ड द बाडर-माइनहोफ कॉम्प्लेक्स. Okay, so this was a Marxist movement in Germany of a small number of people that was politically violent in order to spark a revolution in Germany. Similarly, you had the Red Brigades in Italy, again another Marxist movement, and the Weatherman Underground in the United States of America. ये भी sabotage करते थे, अगरचे ये बंदे बुंदे नहीं मारते थे, मगर economic sabotage वगैरह करते थे. And the June 2nd movement. These are all leftist movements that went the route of using political violence. But they were not mass movements. छोटे छोटे groups के movements थी जिन्होंने ये किया. इस पर बड़ी सारी फिल्में बनी हैं. This is a German film, बड़ी ज़बरदस्त film है, by the way, if you want to understand what the Baader-Meinhof complex was. But overall, what is Marxism's point of view on this? It is capitalist exploitation is violence against the majority. For example, Engels ने अपनी किताब The Conditions of the Working Class in England 1844 में लिखा है कि बेसिकली जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है पॉवर्टी के ज़रिए इट इंगेजेस इन द सोशल मर्डर ऑफ द वर्किंग. ये वो उसके लफ्ज़ हैं, मेरे नहीं है. सोशल मर्डर ऑफ द वर्किंग क्लास कर देती है. ये इतनी गुर्बत फैला देती है कि उनका कत्ले आम है एक तरह से. मार्क्स क्या कहता है कि जी वायलेंस तो पूरी सोसाइटी में हो ही रही है, सोशल मर्डर ऑफ द वर्किंग क्लास है. आपने कहा गरीब गरीब है, मार्क्स तो इससे आगे कह रहा है गरीब इतना गरीब है, उसको इतना गरीब बना दिया गया कि वो उसकी ज़िंदगी काट दी गई, छोटी कर दी गई है. कई साल अपनी ज़िंदगी के गरीब आदमी लूज़ करता है. अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक आम बंदे की 70-75 साल है तो गरीब बंदे की 60-65 साल है. उसने 5 साल पहले मर जाना है, हो सकता है उसने 10 साल पहले मर जाना है, क्योंकि वो इतनी मशक्क़त कर रहा है, इतनी पुअर उसकी न्यूट्रिशन है, इतनी पुअर लिविंग के हालात हैं कि आप उसके 5-5, 10-10 साल ज़िंदगी के छीन रहे हैं उससे. So this is also like murder and violence of people. So Marx wants
doesn't want individual violence के जाओ जाके तोड़ दो पन दो ये वो, he thinks that's totally wrong, but what he wants is a mass movement, एक mass movement बने working class की, मजदूरों की, गरीबों की, और वो mass movement will use force. मार्क्स भी लफ्ज़ इस्तेमाल करता है force का, कि force is the midwife between every society that is transitioning to a new society. तो हाँ force इस्तेमाल करनी पड़ती है. What kind of force, how much force, when it is to be used, that of course depends on the various circumstances of that society and the politics of the situation. But force is necessary to push back against this system, etc. Marx and Engels were revolutionaries, obviously, and they believed that the violence of the ruling class must be countered by the force of the working class. So you see here the terms are inverted. कि ruling class की जो यूज़ ऑफ फोर्स है वो वायलेंस है इस वजह से क्योंकि वो अनजस्टिफाइड है. क्यों अनजस्टिफाइड है? क्योंकि उसका मकसद ये है टू मेंटेन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिच ऑफ द पुअर. अमीर जो है वो गरीब का इस्तेहसाल करे, उसका असल मकसद ये है. और मार्क्स जो एडवोकेट कर रहा है वो ये कि गरीब हैज़ टू फाइट फॉर हिज राइट. सो दैट्स द यूज़ ऑफ फोर्स इन द सेंस दैट इज़ जस्टिफाइड इन द स्ट्रगल फॉर देयर इमेंसिपेशन. लेनिन का जो बड़ा भाई था उसका नाम था अलेक्जेंडर. लेनिन बड़ा छोटा था जब अलेक्जेंडर को फांसी हो गई. क्यों फांसी हुई? बिकॉज अलेक्जेंडर रेडिकलाइज हो गया अपने यंग एज में एंड ही स्टार्टेड फॉलोइंग अ मूवमेंट कॉल्ड द नरोदनिक्स, जो कि सेमी एनार्किस्ट किस्म की मूवमेंट थी. एंड हिज एल्डर ब्रदर डिसाइडेड टू ट्राई एंड असैसिनेट. तो एंड दे गॉट कॉट, दे वर नॉट सक्सेसफुल एंड दे गॉट कॉट. तो लेनिन के बड़े भाई को फांसी दे दी गई. It had a huge impact obviously on Lenin because he was a very young person at that time and he really looked up to his elder brother. अपने बड़े भाई को बड़ा idealize करता था. So he became a revolutionary himself, but he declared that the use of violence against particular individuals was counterproductive. जो मेरे बड़े भाई ने किया वो ठीक tactics नहीं थी. उसका मिशन ठीक था मगर उसका तरीका गलत था. ये तरीका नहीं है इनकलाब करने का कि आज जाके इंडिविजुअल्स को असैसिनेट कर दें. ऐसे इनकलाब नहीं होता. सो लेनिन वांटेड टू बिल्ड अ मैस मूवमेंट टू स्मैश द बुर्जुआ स्टेट विद फोर्स. सो बेसिकली ही गॉट ऑल दीज वर्कर्स टुगेदर एक्सेट्रा, ऑर्गेनाइज द वर्किंग क्लास. और वर्ल्ड वॉर 1 का जो क्राइसिस था उसमें बोल्शेविक पार्टी केम फॉरवर्ड एंड मेड दिस रेवोल्यूशन. बाय द वे ये देखो यहाँ साइड पे ट्रॉट्स्की भी खड़ा हुआ है इन केस यू वर इंटरेस्टेड. ओके, देन कम्स माओ ज़ेडुंग. बड़ी फेमस सेइंग है इसकी, पॉलिटिकल पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन. और अक्सर लोग बस इतनी ही इसको कोट करते हैं, बट एक्चुअली द फुल कोटेशन इज कि द पार्टी मस्ट कंट्रोल द गन मस्ट नेवर कंट्रोल द पार्टी. सो इट्स ऑलवेज पॉलिटिक्स इन कमांड फॉर माओ ज़ेडुंग. So Mao led a rural guerrilla army that brought the communists to power after 3 decades of a civil war. और गरीबों में वो बड़ा पॉपुलर था. क्यों? गरीब किसानों में वगैरह, क्योंकि वो फ्यूडल्स के ख़िलाफ़ था. वो कहता था ये ज़मीन जो हमने फ्यूडल से छीन के जो है गरीबों में तकसीम कर देनी है. तो गरीब जो थे मिलियंस में उन्होंने माओ को सपोर्ट किया और उसकी वजह से वो कामयाब हो गया और स्टेट बन गया. फिर उसने कल्चरल रेवोल्यूशन किया व्हेन ही वाज हिमसेल्फ इन पावर इन फैक्ट. और इस कल्चरल रेवोल्यूशन ने 70s की जनरेशन को बड़ा मुतासिर किया. इनफैक्ट जो ब्लैक पैंथर्स पार्टी थी, अगर आपने वो हॉलीवुड में तो उसके बड़ी इमेजेस आती हैं, मैन इन ब्लैक वगैरह भी वहीं से आधा कॉपी किया होता है उन्होंने. मगर जो ब्लैक पैंथर पार्टी थी और बहुत सारे उस ज़माने के जो रेडिकल ग्रुप्स थे वो फिर माओ को फॉलो करते थे और वो ये कहते थे कि येस दिस इज़ द मॉडल दैट वी नीड टू फॉलो. नॉट ऑल ऑफ देम वर सक्सेसफुल, सम ऑफ देम वर सक्सेसफुल, but many of them were obviously also not successful. Another form of violence, that political violence that we see of course is what we term as Islamic fundamentalism, जिसमें अल-कायदा है, ISIS है, तालिबान है, बोको हराम है. और वो ये कहते हैं कि हम एक इस्लामिक स्टेट इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, हम शरिया लॉ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं. और इस वक्त शरिया को अगर कोई मुल्क रोक रहा है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, तो लिहाजा हमने अमेरिका पे अटैक करना है. तो इसलिए उन्होंने ये 9/11 का अटैक किया. अब बहुत सारे लोग तो मानते ही नहीं कि उन्होंने किया, कहते हैं नहीं सर इट वाज एन इनसाइड जॉब. अगर वो इनसाइड जॉब था तो फिर उसामा बिन लादेन ने खड़े होकर ये क्यों वीडियो बनाया, असी कीता असी फिर करांगे होर करांगे. doesn't make sense. ठीक है ना. why was he taking credit for it if it वो कह देता इट्स एन इनसाइड जॉब, मैं थोड़ी कीता है, मेरे पीछे क्यों भाई हो. मगर he took credit for it and Emil Zawahiri etc. they all took credit for it कि हमने किया और हम और करेंगे because we are at war with these people etc. So
अब इनकी जो जंग है वो रियासत के ख़िलाफ़ महज नहीं है, बल्कि इनकी जंग जो है एक तरह, क्योंकि वो एक रिलीजियस वॉर है, तो कहते हैं हमारी जंग जो है ना वो बेसिकली डिसबिलीवर्स के ख़िलाफ़ है। सो डिसबिलीवर्स में अमेरिकन भी शामिल हो सकते हैं और डिसबिलीवर्स में आप लोग भी शामिल हो जाते हैं कभी कभार। जिस तरह तालिबान ने TTP ने वो स्कूल पे अटैक किया, क्या नाम था उस स्कूल का, APS स्कूल पे अटैक किया, हाँ, और वहाँ बच्चों को भी मारा और टीचरों को भी मारा एक्सेट्रा। और जनरली आपने देखा 2007 से लेके तकरीबन 14-15 तक पाकिस्तान के अंदर बड़ी लंबी और ब्रूटल जंग चली। पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, देखा आप? यू मस्ट हैव बीन, हाँ, you must have been much smaller back then, so obviously you were not reading the newspaper, but you're aware of it, right? Civilian attack क्यों करते हैं? Because civilians are soft targets. You see, we are soft. Why are we soft? Because हमारे पास हथियार तो है नहीं, ठीक है? We are unprotected. हम बंकर के पीछे थोड़ी बैठे हुए हैं, हमारे पास बजूका शजूका ये वो तो नहीं पड़ा. But you get the picture. I'm a soft target. You're a soft target. We're all soft targets. Not because we're physically soft. ठीक है, अगर आर्म रेसलिंग करनी हो तो शायद मैं हरा भी दूँ, मगर बिकॉज वेपन्स नहीं है ना यार, सीधी सी बात है. We're not prepared to fight. We're not in that, we're not sitting in bunkers, etc. So जब वो हार्ड टारगेट को हिट नहीं कर सकते, फौज को हिट नहीं कर सकते, क्योंकि फौज पे वापस हिट करेगी, मरेगी, तो फिर वो हिट करते हैं सॉफ्ट टारगेट्स को. ठीक है, तो इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ऑब्वियसली ये होता है कि दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस. मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये सिर्फ टेररिज्म फॉर द सेक ऑफ टेररिज्म नहीं, ये भी एक पॉलिटिक्स है, इसके पीछे भी एक सियासत है. अच्छा जी, सो टेररिज्म मैं कह रहा था ये भी एक पॉलिटिकल वायलेंस है. अगरचे हम अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया में कह देते हैं ओ ये तो बस इंडियन एजेंट्स हैं करा रहे हैं, ये है वो है, मगर एक्चुअली इट्स ऑल्सो अ पॉलिटिकल स्ट्रगल. सो टेररिज्म इज एम्ड, व्हाट इज द पॉलिटिकल स्ट्रगल? इट्स एम्ड एट यू, इट्स एम्ड एट द पॉपुलेशन, नॉट जस्ट द स्टेट. मगर इसका पर्पस ये टू क्रिएट सच टेरर in the general population that society will give in to the political demands of that particular organization. अब गौर करें कि जब वो हमारे पुलिस वालों को मारते थे, जब आपके सिपाहियों के कटे हुए सरों के साथ वो फुटबॉल खेलते थे और जब वो सर काटते थे तलवार के साथ, तो उसका वीडियो जो है वो चोरी छुपे नहीं बनता था, वो खुद बनाते थे और ख़ुद बना के वो फिर खुद ब्रॉडकास्ट करते थे. तो व्हाट्स द पर्पस ऑफ दैट? पर्पस ऑफ दैट इज़ एग्जैक्टली द सेम जो कि हलाकू खान का पर्पस था, जो कि चंगेज़ खान का पर्पस था, जो कि मंगोल्स का पर्पस था, जो कि टर्क्स का भी पर्पस था, विच इज़ टू सीज, टू पुट टेरर इनटू द हार्ट्स ऑफ द रेजिस्टिंग पॉपुलेशन. आपको पता ना, मंगोल्स ने जब किसी पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ 13th सेंचुरी की, जब किसी शहर को कॉन्कर करना होता था ना, तो वो एक शहर जो रेजिस्ट करता था ना, उसकी की सारी पॉपुलेशन को वो मार देते थे, सारी पॉपुलेशन को, और फिर उनके स्कल्स पाइल अप कर देते, पहाड़ बना देते थे. अगले 10 शहर जो है कहते थे माय बाप वी विल नॉट फाइट यू, आ जाओ जो चाहिए ले लो, हम नहीं लड़ेंगे. सो टेरर इज अ टैक्टिक. शॉक एंड ऑन ही आपने देखा जब अमेरिका ने इराक पे अटैक किया था, धाड़ 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 तबाही. सो इन वॉर ऑफ कोर्स यू वांट टू टेरराइज द ओपोनेंट, ठीक है, कि वो लड़े ना वापस. So that's what the TTP also wanted to do here, कि इतनी दहशत फैल जाए TTP के हवाले से कि कोई बंदा जो है ना वो ये ना कहे कि भाई इनके खिलाफ लड़ो, ठीक है, you submit. So it has a political objective. इस बात को समझने की ज़रूरत है. It has a political objective. Counter-terrorism can never be successful unless it also addresses the political and ideological causes of the violence. No matter whatever the kind of violence it is and the kind of movement, if you have decided कि भाई इसके खिलाफ लड़ना है, चाहे वो मार्क्सिस्ट है या वो इस्लामिस्ट है या वो कुछ और है या वो नेशनलिस्ट है, अगर आपने उसको तोड़ना है तो फिर you also, it's not just a military operation, it's not just a police, it's not just a law and order problem, because the violence that they're doing, उसका मकसद वो एक सियासी स्ट्रेटजी का हिस्सा है. तो जब तक आप उसके काउंटर स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे उसको काउंटर करने के लिए, उस वक्त तक आप कामयाब नहीं होंगे. ठीक है, ओके, कमिंग टू द एंड नाउ. सो लिबरल थियरी ये कहती है कि स्टेट्स जो हैं वो तो फोर्स यूज़ करती हैं, वायलेंस नहीं यूज़ करती, और पॉलिटिकल वायलेंस जनरली वो है जो लिबरल स्टेट्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है. मगर रियलिटी ये है कि लिबरल स्टेट्स देमसेल्व्स हैव अ हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म एंड एम्पायर. ठीक है, वो जो सारा पीरियड था आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो वो लिबरल्स ही उसके पीछे बैठे हुए थे और उसको सपोर्ट करी जा रहे थे.
और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो इंडिया के साथ हाल किया वो कुछ चंगा तो नहीं था, समझ रहे हैं? सो दिस इज अ काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस. The fact that violence by Western liberal states against colonial people is not even considered violence, but merely force, it's itself a huge blind spot. अपनी वायलेंस की जब बारी आती है तो बिल्कुल इस बारे में वो ब्लाइंड है. अभी कैमरन का इंटरव्यू हो रहा था, तो बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू था, मैंने इंस्टा पे शेयर भी किया. यार सुनो ना, मैंने इंस्टा पे शेयर किया तो BBC पे था या आई डोंट नो किस चैनल पे था, आई थिंक BBC पे था. तो रिपोर्टर उससे पूछती है, उससे बात कर रही है ईरान के बारे में, तो कहता है नाउ यू सी ईरान, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टेट ईरान इज, जस्ट लुक एट व्हाट दे हैव डन, कैसे उन्होंने इजराइल पे अटैक किया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये है वो है. अब उनकी असलियत सामने आ गई, वो ये कहता है. तो रिपोर्टर बड़ी कामली उससे पूछती है कि कैमरन साहब, अगर यूके की एम्बेसी पे इसी तरह अटैक होता जिस तरह ईरान की एम्बेसी पे अटैक होता हुआ, तो यूके का क्या रिस्पांस होता? अब हम बड़ा बड़ा रिस्पांस देते हैं, हम ऐसे की तैसे ही फेर देते. तो मतलब ऑब्वियसली फिर उन्होंने भी वही किया जो आप कह रहे हैं कि आप करने के लिए तैयार हैं. वो क्लिप देखने वाला बड़ा ज़बरदस्त है. सो बेसिक बात यही है कि दे सीम टू बी completely blind to the fact that when they do it, everything is fine, it's great, it's wonderful, it's for civilization, it's for democracy, it's for human rights. But when anybody else does it, then it's terrible, horrible, unless they do it in such a way that it benefits them in one way or another. Sadly, that is the reality of politics in the world. Yes, we have our ideals कि politics ऐसे होनी चाहिए, but when we look at the reality, it's very far from those ideals. I love this picture because look at this, he's holding a slingshot in his hand, and in the other hand he's holding a Palestinian flag, and this पीछे press वगैरह है खड़ी हुई, and he's firing the slingshot against what is the most best armed state in the world, most heavily armed state in the world. ये मेरा ख्याल है this is when जब वो wall थी, इस wall पे जब वो fence था, उस पे ये slingshot मार रहा है. Who were firing live ammunition back, by the way, I have to tell you. Anyway, so to end now today's lecture, I think जो general rule of thumb हमें इस्तेमाल करना चाहिए वो ये है कि there has to be a distinction between the violence of the oppressed and the violence of the oppressor. In discussions about political violence, it is necessary to differentiate between these two things. जो आप सवाल पीछे पूछ रहे थे कि how do we know, कैसे हम जज करेंगे, तो जज करने का जो तरीका है जी, जज करने का जो तरीका है वो ये है कि पहले आप डिटरमिन करें. सबसे पहला स्टेप जो है, बाकी स्टेप्स भी हैं, मगर पहला स्टेप तो ये है ना, टू डिटरमिन कि ये वायलेंस ऑफ द ओप्रेसर है या वायलेंस ऑफ द ओप्रेस्ड है. सो द वायलेंस इन्फ्लिक्टेड बाय द ओप्रेसर ऑन द ओप्रेस्ड फॉर द सेक ऑफ मेंटेनिंग अ सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रिविलेज, ये एक तरफ है कि हमने अपनी प्रिविलेज नहीं छोड़नी, हमने कलोनियलिज्म नहीं छोड़ना, हमने इंपीरियलिज्म नहीं छोड़ना, हमने आपकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं छोड़नी, उसके लिए भी लोग जंग पे जाते हैं. और दूसरी तरफ है द वायलेंस ऑफ द ओप्रेस्ड against their oppressors for the sake of breaking the system of exploitation and privilege that denies the humanity of the oppressed. वो दूसरी चीज़ है बिल्कुल कि आपको बिल्कुल दबा के एक्सप्लॉइट ओप्रेस किया जा रहा है, उसके खिलाफ आप एहतजाज कर करके थक गए हैं, कोई आपके पास रास्ता ही नहीं, कोई आपकी सुनने के लिए तैयार नहीं, तो फिर आप अपने हकूक़ के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपनी लिबरेशन के लिए लड़ते हैं, तो क्या वो बराबर है उस चीज़ के लिए, उस जंग के लिए जो कि वो लोग कर रहे हैं इस मकसद के लिए कि आपको इंस्लेव किया जाए? जो एग्ज़ाम्पल मुझे इसमें सबसे अच्छा लगता है वो ये है कि रोमन हिस्ट्री में बिफोर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम there was a huge slave rebellion that was started with those people who were gladiators, but very quickly it spread to everybody जो देहात में जो देहाती काम करते थे, बेचारे गरीब गुलाम, क्योंकि बड़ी बड़ी प्लांटेशंस पे, उनसे एग्रीकल्चर प्लांटेशंस पे रोमन एम्पायर जो है काम करवाता था अपने स्लेव से. तो वो लाखों की तादाद में उन स्लेव्स ने ज्वाइन किया, the 70 gladiators who started the revolution, and the person who led that revolution was of course Spartacus. And और वो इतना ज़बरदस्त लड़े वो रोमन्स के ख़िलाफ़, अगरचे हमारे पास स्पार्टिकस की अपनी कोई राइटिंग नहीं है, हमारे पास
उन स्लेव्स की अपनी कोई राइटिंग नहीं है कि वो कैसे लड़े, क्यों लड़े. हमारे पास राइटिंग है रोमन्स की, स्पार्टिकस के खिलाफ, यो उसने ये कर दिया, उसने वो जुल्म कर दिया, उसने ये ज्यादती कर दी, उसने फलाना कर दिया, बुरा भला लिखी जा रहे हैं उसके खिलाफ. मगर एट द सेम टाइम वो लिख रहे हैं कि उसने इस तरह से अटैक किया, इस तरह से अटैक किया, आई दिस डास्टर्डली व्हाटएवर स्लेव्स व्हाटएवर. उसी से आप रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं द हिस्ट्री. So you discover that he in fact at one time had defeated the main armies of Rome, जो रोम के अंदर थी, कुछ रोम से बाहर थी. और अगर उसका दिल चाहता तो उस वक्त सिटी ऑफ रोम को भी अटैक करके टेक ओवर कर सकता था. मगर उसने कहा नहीं, मैंने ये नहीं करना. मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ से निकलें, हम इस पूरी जगह से, रोम से निकलें, ये तो हमारे लिए जहन्नम जैसी जगह है. So he went, he made a trade with some merchants etc. to take them all across the sea. उन्होंने उसको betray किया. betray की वजह से he got caught. The Romans had moved their armies जो पहले बाहर थी, they had brought them back in, and there was a big war, and Spartacus lost. And when he lost, तो वो अगर आप फिल्म देखें स्पार्टिकस पुरानी वाली, कर्क डगलस वाली, जो माइकल डगलस का प्यों था, तो उसमें वो पूछता है उससे कि हु अमंगस्ट यू स्पार्टिकस, जब वो पकड़ लेता है ना सबको. वी डोंट नो इफ दिस इज अ ट्रू स्टोरी और नॉट, बट इट्स समवॉट ट्रू फ्रॉम द फैक्ट्स दैट वी गेट. बट खैर एनीवे, स्पार्टिकस स्टैंड्स अप एंड सेज कि आई एम स्पार्टिकस. तो साथ वाले जो उसका बंदा होता है कहता है नो आई एम स्पार्टिकस. तू खड़ा होता है, दूसरा कहता है आई एम स्पार्टिकस, अगला कहता है आई एम स्पार्टिकस. सारे खड़े हो जाते हैं, सब कहते हैं आई एम स्पार्टिकस. तो द रोमन्स then basically about 4,000 of the remaining soldiers who fought with Spartacus, उन्होंने उन सब को जो है वो क्रूसीफाई किया. फ्रॉम कैपुआ ऑल द वे टू रोम उन्होंने सलीबें लगाई और उन सब को क्रूसीफाई किया. सो बिफोर जीसस Hazrat Isa alayhi salam was given the crucifixion, this was the main punishment that Romans used to give for anyone who fought against the state. They crucified all these slaves. Is it historically correct? Yes, this is historically correct that they crucified those slaves, and the whole rebellion and everything. That is absolutely correct. So, why did I tell you this story? Not just because of its shock value, etc., but because obviously Spartacus, जो कि गुलाम था खुद और गुलामों की बगावत लेके आगे चल रहा था गुलामी से आज़ादी हासिल करने के लिए, और रोमन एम्पायर जो कि उनको गुलाम बनाने के लिए जंग कर रहा था, दोनों वायलेंस कर रहे थे. स्पार्टिकस भी वायलेंस कर रहा था और रोमन स्टेट भी वायलेंस कर रहा था, मगर दोनों के मकासद, सियासी मकासद बिल्कुल मुख्तलिफ थे. स्पार्टिकस लड़ रहा था इस मकसद के लिए, अपनी इंसानियत के लिए, गुलामी के निज़ाम को तोड़ने के लिए. वो टूटा नहीं उस वक़्त, वो फिर भी 1000 साल मज़ीद और कायम रहा. वो फाइनली जाके 19th सेंचुरी में जाके टूटा, अंदाज़ा करो. तो वो जब गुलामी फाइनली इलीगल डिक्लेयर हुई एंड सो ऑन सो फोर्थ. मगर बहरहाल वी कैन रिमेंबर, वी विल लुक बैक एट दैट हिस्ट्री एंड से वुड यू हैव स्टूड विद द रोमन स्टेट जो इस मकसद के लिए लड़ रहा था कि लोगों को गुलाम बनाया जाए और गुलामी के निज़ाम को मुस्तहकम किया जाए, या would you have stood with the poor and downtrodden and oppressed, the people who fought with Spartacus, despite the fact that they were violent? They had to fight for their freedom, given that they stood for their own humanity, and they stood in a certain sense, not just for their humanity, but for humanity in general. Because where humanity remains, where a part of humanity remains in chains, all of humanity remains in chains. If you oppress the vast majority of people, you cannot then turn around and say that humanity is free. In fact, the vast majority of humanity is enslaved. So to make humanity human, really, the system of slavery has to be destroyed. That's what Spartacus stood for. Thank you all.